من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا صدق اللہ مولانا العظیم وَإِذَا حُيِّيتُم اور جب تم دعا دو بتحیہ کسی بھی دعا کے ساتھ فحیو پس دعا دو بأحسن منہا جیسا جو اس کا اچھا انداز ہے اس میں سے اور ردوہا یعنی جس نے تمہیں دعا دی ہے تو اس کو اس سے اچھے انداز میں جواب دو یا کم از کم اسی کا انداز بھی اسے لوٹا دو ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لیجمعنکم ضرور جمع کرے گا تم کو الی یوم القیامہ فی یوم القیامہ قیامت کے دن میں لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا پھر بھی اگر کسی کو شک ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے زیادہ سچی بات پھر کس کی ہو سکتی ہے تحیہ کسی کو دعا دینا عربوں کا رواج تھا کہ جس کو دعا دیتے تھے تو کہتے تھے حیاک اللہ اللہ تیری عمر دراز کرے تو اسلام نے آ کر اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کی دعا دی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس میں درازی عمر کی دعا ہوتی تھی اس میں سلامتی کی دعا ہے اب خود فیصلہ کر لیجئے کہ ایک آدمی کی عمر لمبی ہو سلامتی نہ ہو اس عمر کا کوئی فائدہ ہے اور اگر عمر مختصر بھی ہو اور سلامتی کے ساتھ ہو تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے وہ ایک صاحب ایمان لائے اور ساتھ ہی جہاد کا نکارہ بج گیا تو وہ میدان جہاد میں اتر گئے شہید ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس شخص کو دیکھنا ہو جس نے کم وقت پایا اجر زیادہ کمایا اس شخص کو دیکھ اس لیے فرمایا کہ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تین الفاظ ہیں اس سے زائد نہیں ہے مسنون تین ہی ہے اس سے زائد لوگ کچھ الفاظ ملا لیتے ہیں لیکن مسنون الفاظ یہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک صحابی آئے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے فرمایا وعلیک ایک اور صاحب آئے اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب اس نے ایک بڑی عجیب بات ہو گئی کہ جس نے مطلب دو کہے اس کو تین کا جواب ملا اور جس نے تین کہے اس کو صرف وعلیک کا جواب ملا تو اس میں کیا حکمت تھی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا دیا کہ اس نے الفاظ دعا مکمل کر دیے اور اس کا جواب کیا تھا وعلیک تجھ پر بھی ہو تو وہ تین کے تین پورے ہو گئے اس کے لیے اس نے چونکہ دو کہے تھے تو جواب میں حکم یہ ہے کہ یا تو اتنے ہی الفاظ میں اس کو واپس سلام کا جواب دو یا اس سے بہتر دو یا اتنا کم از کم اتنا ضرور دو تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس کے جواب میں وبرکاتہ کے الفاظ کا
इजाफा किया। अब यहाँ ये बात समझ लीजिए, नहीं बस कर, इसमें ये एक चीज भी है कि सलाम जो है वो, ये तो पता है कि पैदल चलने वाला बैठे को दे और सवार पैदल को दे, जो मजलिस में आया है वो मजलिस वालों को सलाम कहे, खाना खा रहा है तो सलाम नहीं कहना चाहिए। इसी तरीके से नमाज पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, तो नमाज, तिलावत और इस्तंजा इन 3 हालतों में तो ममनू है। तो इससे आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि सलाम का जवाब देना, फरमाया जिस सलाम कहना मसनून है, जवाब देना बाद में फ़र्ज लिखा है, कोई उसे वाजिब कह देते हैं। लेकिन ये है कि सलाम का जवाब ज़रूरी है, उसे फ़र्ज या वाजिब जिस दायरे में गिने, फ़र्ज और वाजिब कभी को ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, इसलिए ये बात जिक्र करती कही है। अब इसमें 2 चीज़ें और भी हैं जिनकी ज़रा वजाहत कर ली। एक होता है मुसाफा, एक होता है मुआनका। पहले तफसीर ये लिखते हैं कि जो मुसाफा है ये तो अहसन चीज़ है, इसलिए कि इसके ज़रिए से आदमी के दिल में अगर कुछ मैल हो तो वो उतर जाता है। जाहिर है कि अस्सलाम वालेकुम करके गुजर जाएं और बात है, हाथ मिला लें तो कैफियत ज़रा और होगी। लेकिन मुआनका जो है वो अगर कोई सफ़र से आया हो तो उससे मुआनका कर लेना चाहिए। लेकिन जहाँ आते जाते हर वक्त आदमी मुआनका करता रहे तो इसको मुस्तहसन नहीं समझा गया। मुआनका सिर्फ उस सूरत में मुस्तहसन है जब कोई आदमी सफ़र से आया तो उसके साथ मुआनका जो है, मुआनका कहते हैं गले लगना। तो ये बार बार गले लगने वाला अमल जो है ये कोई ज़्यादा मुस्तहसन समझ में नहीं आता। इसी तरीके से हाथों को बोसा देने के बारे में भी कहा गया कि वो मकरूह है, इल्ला ये कि तब बरकत के लिए किसी बुजुर्ग के हाथ अकीदत से चूम लिए जाएं तो उनको किसी हद तक जवाज में जिक्र किया गया है। ये तो हुआ जी तहिया के सलाम कहना भी है और सलाम का जवाब भी देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अफ़शुस सलाम बैनकुम, आओ मैं तुमको बताऊं कि आपस में मोहब्बत कैसे बढ़ती है। तो उसका तरीका यह है कि सलाम को रवाज दो, सलाम को आम करो, आते जाते। ये नहीं कि एक दफ़ा कह दिया दोबारा आए तो अब कहने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, आते जाते जब भी हो सलाम कहना चाहिए। और सलाम में पहल करने वाले के बारे में तो वो मुफस्सिरीन ने वो रिवायात भी नकल की कि वो अल्लाह के सबसे करीब होता है जो सलाम में पहल करता है। जाहिर है अल्लाह का नाम है अस्सलाम, आपने कुरान मजीद में पढ़ा होगा अस्सलामुल मोमिनुल मुहैमिन, सलाम अल्लाह का इसमें मुबारक है। और इसी की निस्बत से जो इस लफ्ज़ के साथ किसी को दुआ देता है तो जाहिर है कि वो अल्लाह के कुर्ब का एक जरिया भी बन जाता है। फरमाया कि इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा, अल्लाह हर चीज़ पर हिसाब लेने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी का कोई लम्हा, आपका कोई अमल छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हिसाब से बाहर नहीं होगा, हिसाब से बाहर नहीं होगा। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला बंदे को अपने सामने से उस वक़्त तक हटने नहीं देगा जब तक वो इन सवालों के जवाब न दे दे। वह अन उम्र ही फीमा अफना, कि जिंदगी कहाँ खर्च करके आया है, जिंदगी का हिसाब दे। तो जिंदगी तो नाम है लम्हात का, लम्हात के मजमूए का नाम जिंदगी है, हर लम्हा जिंदगी है। तो उन तमाम लम्हात का जवाब देना होगा कि कौन सा लम्हा कहाँ गुजरा, किस काम में गुजरा, अच्छे में या बुरे में, तो ये तो जवाब देना पड़ेगा। वह अनमाल ही,
माल के बारे में भी अल्लाह पूछेगा, मिन ऐना इक्तसबहु, कहाँ से कमाया, जायज तरीके से नाजायज तरीके से कैसे कमाया, वह ऐना अनफका, और खर्च कहाँ किया, ये भी जवाब देना पड़ेगा। आमदन का हिसाब भी देना होगा और खर्च का हिसाब भी देना होगा, और उस अदालत में देना होगा जहां का ऑडिट दुनिया के ऑडिटर उसकी किसी जर्रे को भी नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल बेगुबार, बिल्कुल साफ, और उसके अंदर कोई इबहाम नहीं। तो फरमाया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, इलाह तो तुम्हारा अल्लाह ही है, उसके सिवा कोई और इलाह नहीं। और इलाह क्या होता है, जिसकी बात मानी जाए और जिसके मुकाबले में किसी की बात ना मानी जाए, जो हाजत रवा हो, जो मुश्किल कुशा हो, जो कारसाज हो। गुस्तमाना इला आसिफ वे यूलिहुना फिल हवाइज हुम लदई, इला का माना करती सिवा कहते हैं कि मखलूक अपनी हाजतों में जिसकी तरफ रुजू करे कि वो देने वाला है, वो सब कुछ दे सकता है, बगैर असबाब के भी दे सकता है, असबाब के जरिए भी दे सकता है, वो सब कुछ करने वाला है और उसके किए को कोई रोक नहीं सकता, तो वो इलाह है। तो इलाह वो है जिसका हुक्म माना जाए। तो जाहिर है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो नमाज पढ़ने की हमें तलकीन हो गई, रोजा रखने की, हज करने की, ज़कात देने की। फरमाया लयजमान्नकुम इला यौमिल क़ियामत, तुमको जरूर जमा करेगा क़यामत के दिन, ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है। वमा नस्तकु मिनल्लाहि हदीसा, साथ ही ये बता दिया कि हिसाब की घड़ी आग कर रहेगी। इन्न दीन लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, सूरह तूर में फरमाया जजा का दिन आग कर रहेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको टाल नहीं सकता। इन्न दीन लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। और एक मकान फरमाया अलहाका मलहाका वमा अदराका मलहाक, सचमुच होकर रहने वाली, और तू क्या जाने वो क्या है सचमुच होकर रहने वाली। कज़्ज़ब समूद व आद बिल कारिया, समूदी और आदियों ने भी क़यामत को झुटलाया था। कारिया भी क़यामत का नाम है, हाका भी क़यामत का नाम है, दीन यौमुद्दीन के साथ क़यामत का नाम है, इसी तरीके यौमुल हिसाब उसका नाम है, और क़यामा भी उसका नाम है, इसके अलावा भी बहुत से नाम है। तो फरमाया कि उन्होंने झुटलाया था, फिर उनका अंजाम क्या हुआ। तो इसलिए हिसाब की तैयारी रखो, गोया ये तलकीन की जा रही, सलामती चाहते हो हिसाब की तैयारी रखो। फरमाया फमालकुम फिल मुनाफिकीन, फिर तुम्हें क्या हो गया कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो गिरोहों में आपस में तकसीम हो रहे हो, दो गिरोह बन रहे हो। वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू, अल्लाह ने उनको लौटा दिया, अरकसहुम लौटा दिया उनको, बिमा कसबू बवजह इसके जो उन्होंने कमाया। यानी मुनाफिक की मुनाफकत ज्यादा देर छुपी नहीं रहती, खुल जाती है, उसके तर्ज अमल से बात वाज़ेह हो जाती है। कुछ लोग मक्का से आए, इस्लाम कबूल किया, फिर हीला बनाया कि हमारा कोई तिजारती मामला है, वापस चले गए मक्का, और फिर उन्होंने इस्लाम को खैराबाद कह दिया। उनकी तरफ इशारा है। बनु असद और बनु गतफान वो भी ऐसे ही कबाइल थे जिन्होंने बज़ाहिर इस्लाम के साथ हम आहंगी का इजहार किया, लेकिन अंदरून खाना वो इस्लाम के साथ मुखलिस नहीं थे। तो यहाँ कहते हैं तीन गिरोह हैं जिनकी बात की गई है। एक वो गिरोह है कि जो पहले कलमा पढ़ा, बज़ाहिर मुसलमान हुए, अंदर से नहीं हुए थे, डर कर हुए या लालच में हुए, कोई भी वजह हो सकती है। फिर जब उनको मौका मिला तो उन्होंने इनकार कर दिया, ये मुर्तद हुए, इनके साथ जंग होगी। दूसरे वो कि जिन्होंने कलमा तो पढ़ लिया, मजबूरन पढ़ लिया, लेकिन अंदर से दिल मानता नहीं है, लेकिन लड़ने भिड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, और मुआहदा कर लेते हैं मुसलमानों से कि जी हम उस वक्त तक आपके साथ कोई जंग नहीं लड़ेंगे, बल्कि जो आपके खिलाफ लड़ेगा हम उसकी मदद भी नहीं करेंगे, हमें कुछ ना कहा जाए। तो ऐसे लोगों के साथ तो सुलह ही ठीक है जब तक कि वो लड़ना पड़े। बल्कि यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा कि हम जब कुरैश मुसलमान होंगे तो हम भी मुसलमान हो जाएंगे, ये भी बात उन्होंने साथ तरमीम भी लगा दी।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ जंग की जरूरत नहीं है जब तक कि वो अमन से रहे, कोई शरारत ना करें। तीसरा गिरोह भी पहले गिरोह की तरह है कि जो बज़ाहिर मुसलमान हैं लेकिन अंदर से कुफार के साथ भी मिली भगत रखते हैं और कोई मौका तलाश करते हैं कि मुसलमानों को झटका दिया जाए। तो फरमाया उनका भी अगर वो सुलह के मुआहदे को नजरअंदाज करें तो फिर उनके खिलाफ भी तलवार उठानी चाहिए। तो ये 3 गिरोह जिक्र किए मुफस्सिरीन ने। तो फरमाया इनके बारे में जो चले गए थे मक्का और मुसलमान होकर बज़ाहिर गए थे, तो उन्होंने जब इनकार किया तो कुछ लोग कहते थे जी कलमा तो पढ़ा है ना, मुसलमान है। कुछ लोग कहते थे कहाँ के मुसलमान हैं। तो उसके बारे में फरमाया तुम्हें क्या हो गया कि तुम उनके बारे में दो राय हो रहे हो। वल्लाहु अरकसम बिमा कसबू, अल्लाह ने उनको लौटा दिया वहीं पे जहां से आए थे, पहुंची वहीं जहां का खमीर थी। फरमाया अतुरीदून अन तहदू मा नज़रल्लाह, क्या तुम चाहते हो अन तादू उसको हिदायत दो जिसे अल्लाह ने हिदायत से महरूम किया, यानी वो बदनसीब ठहरे, अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया, हिदायत से महरूम कर दिया, और तुम उनको हिदायत पर मजबूर करना चाहते हो, हिदायत देना चाहते हो, तो तुम्हारे बस में तो ये काम नहीं है। फलन फरमाया वमन युज़लिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला, जिसको अल्लाह हिदायत से महरूम कर दे उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। वद्दू तकफुरून, वो तो दिल से चाहते हैं काश तुम भी कुफर के रास्ते पर आ जाओ। कमा कफरू, जिस तरह उन्होंने कुफर इख्तियार किया है। फतकूनून सवा, फिर एक जैसे हो जाएं, जैसे वो जैसे हम जैसे वो। फरमाया फला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया, इनमें से किसी को अपना दोस्त न बनाओ। ये बिल्कुल लोटों की तरह फिर जाने वाले, इनका कोई पता नहीं कब क्या होंगे। फरमाया फखुज़ूहुम, बस पकड़ो इनको, वक्तुलूहुम, इनको मारो, क्योंकि ये साजिशी लोग हैं, मुर्तद हैं। अच्छा, फला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, यहाँ तक कि वो अल्लाह की राह में हिजरत करें। हिजरत को भी एक मेयार के तौर पे पेश किया, क्योंकि सबसे मुश्किल काम है अपना घर और अपना वतन छोड़ना, ये मुश्किल तरीन काम है। आता है ना रिवायात में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाने लगे तो काबे को मुखातब होकर कहा काबा तुझे छोड़ने को जी नहीं चाहता, पर ये बेदर्द बिरादरी रहने नहीं देते। तो घर छोड़ना या वतन छोड़ना आसान काम नहीं है। वतन से बाहर किसी काम के लिए मजदूरी के लिए जाना और बात है, लेकिन वतन वतन होता है, तो इसलिए उसकी जो मोहब्बत होती है वो आदमी के ऊपर हावी होती है। तो जो लोग अल्लाह के दीन की मोहब्बत को वतन की मोहब्बत पर हावी कर दें, ये उनके मोमिन होने की दलील है। लेकिन अगर उन्हें वतन की याद सता रही है कि मक्का से मदीना आए और फिर वापस चले गए, कि वतन की याद ने सताया और फिर दीन का रास्ता भी छोड़ दिया, तो फरमाया ये फिर उनके ईमान की गवाही नहीं, उनके निफाक की गवाही है कि वो कभी कुछ और कभी कुछ, मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक की तस्वीर। फरमाया फ़इन तवल्लो, फिर अगर वो फिर जाएं, फ़ख़ुज़ूहुम, यानी फिर अगर वो दीन से ही फिर जाएं कि हमसे ये मुश्किल काम नहीं होता कि घर बार छोड़ के चले जाएं और मुहाजिरत इख्तियार कर लें और मुश्किलात से टकराना शुरू कर दें, ये काम हमसे नहीं होता। तो फरमाया फिर इन साजिशों के खिलाफ तुम्हें जंग करनी होगी, क्योंकि ये असलन कुफर के हामी हैं। फ़ख़ुज़ूहुम, पस पकड़ो उनको, वक़्तुलूहुम, और इनको कत्ल करो, हैसु वजदतुमूहुम, जहां भी पाओ तुम इनको, वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलिया, और इनमें से किसी को अपना दोस्त मत बनाओ, वला नसीरा, और न इनको अपना मददगार समझो, इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौम, ये दूसरा ग्रोह आ गया, सिवाय उन लोगों के कि जो यसिलूना इला कौम, किसी ऐसी कौम के साथ मुल्हिक हैं, बैनकुम व बैनहुम मीसाक, के उस बरादरी और तुम्हारे दरमियान कोई मुआहदा है, मीसाक है। अब यहाँ एक सूरत यह है कि एक कबीले ने मुआहदा किया मुसलमानों के साथ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उनके आगे हलीफ थे, तो हुक्म ये बताया गया कि वो भी इसी मुआहदे के दायरे में शामिल हैं। अगर उन्होंने डायरेक्ट कोई मुआहदा नहीं किया,
लेकिन चूंकि वो उस कबीले के साथ मुंसलिक हैं किसी भी मुआहदे के तहत, तो उस लिहाज से ये मुआहदा उन पर भी नाफिज होगा। फरमाया और जाऊकुम, या आए तुम्हारे पास, हसरत सुदूरहुम अन युकातिलुकुम, कि उनके सीने बंद हैं इस बात से कि तुमसे लड़ें, यानी सीना तंग होना कहते हैं जिसको हम, कि उनके सीने तंग हैं कि तुम्हारे साथ लड़ाई करनी पड़े, तुमसे लड़ना नहीं चाहते। ये दूसरा गिरोह है। फरमाया कि युकातिलु कौमहुम, और अपनी कौम से भी नहीं लड़ना चाहते, न तुमसे लड़ना चाहते हैं और ना अपनी कौम से। वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलकातलुकुम, और अगर अल्लाह चाहता तो मुसल्लत कर देता उनको तुम पर, फिर वो तुमसे लड़ते। यानी उन्होंने अपनी चमड़ी बचाने के लिए मुसलमानों से भी लड़ाई से गुरेज, और अपनी कौम के साथ मिलकर या अपनी कौम के खिलाफ लड़ने से भी गुरेज और मुसलमानों के खिलाफ लड़ने से भी गुरेज। तो इन लोगों के बारे में कायदा अलग होगा। फरमाया फलम युकातिलुकुम वअल्कौ इलैकुमुस्सलम, और तुम्हारी तरफ वो सुलह का हाथ बढ़ाते हैं, फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो उन पर कोई कार्रवाई करने का अल्लाह ने तुम्हें कोई इख्तियार नहीं दिया। सतजिदून आखरीन, कुछ और लोगों को तुम पाओगे, युरीदून यामनुकुम व यामनु कौमहुम, कि वो तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी। कुल्लमा रुद्दू इलल फितना, जब भी लौटाए जाते हैं फितना की तरफ, उरकिसू फिहा, तो फितने में शामिल हो जाते हैं। फरमाया फैलम यातज़िलकुम, यहाँ उरकिसू माने अलकू के होगा कि वो डाल दिए जाते हैं फितने में या पड़ जाते हैं फितने में। फइलम यातज़िलकुम, फिर अगर वो बाज ना आए, वयुल्कू इलैकुमुस्सलाम, फइलम यातज़िलकुम, फिर वो तुमसे अगर अलग ना हो, वयुल्कू इलैकुमुस्सलाम, और तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाएं, वयकुफू ऐदियहुम, और अपने हाथों को रोक लें, फखुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, तो उनको पकड़ो और उनको कत्ल करो जहां भी पाओ तुम उनको। हाँ, यहाँ ये बात है फ़इल्लम यातज़िलुकुम, फिर वो अगर अपने इस रवैये को ना छोड़े, इससे अलग ना हो, वयुल्कू इलैकुमुस्सलाम, और डाल लें तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ, लेकिन जंग का मिशन भी जारी है और सुलह का प्रचार भी हो रहा है, तो ऐसे शरारती लोग के हाथ कोई और दिखा रहे हैं, लगा कुछ और रहे हैं, जो पंजाबी में कहते हैं सज्जा दिखा के खब्बा मारना, तो ये लोग जो हैं इनको माफी नहीं देनी है। और फरमाया इनको पकड़ना है और इनको इनके साथ किताल करना है जहां भी पाओ। व उलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना, और ये वो लोग हैं कि तुम्हें अल्लाह ने उन पर दलील वाज़ेह दी है कि तुम इनके खिलाफ कार्रवाई करने का हक रखते हो, क्योंकि ये शरारतें सोचते हैं, शरारतें करते हैं, और जब दबाव देखते हैं तो सुलह का ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से धोखा नहीं खाना चाहिए। वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुल मुमिनन, अब ये जो मुनाफिकीन की बात हुई और मुर्तद्दीन की बात हुई, तो अब मोमिनीन की बात हो रही है कि मोमिन का कत्ल जायज नहीं है। वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुल मुमिना, किसी मोमिन के शायान शान नहीं, उसको ये लायक नहीं कि वो किसी मोमिन को कत्ल करे। फरमाया इल्ला खता, मगर ये कि गलती से कत्ल हो जाए। व मन कतल मुमिनन खता, और जो किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर बैठा है, फतहरीरु रकबा, तो एक मोमिना गर्दन को आज़ाद कराना है। अब चूंकि लौंडी गुलाम का दौर नहीं रहा, तो अब इसकी ताबीर क्या होगी कि कोई ऐसा कैदी कि जो मुसलमान है और उसकी जान सिर्फ इसलिए उस गिरफ्त में अटकी हुई है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको भी उस जुमरे में शामिल किया जा सकता है। ये भी गोया उसको आज़ाद करवाना है कैद से। तो फरमाया कि फतहरीरु रकबतिन मोमिना वदियतुम मुसल्लमा, और खून बहा देना है, मुसल्लमतुन, जो सौंपा जाए, इला अहलिही, उस मकतूल के अहल को, इल्ला अन यस्सद्दकू,
सिवाय इसके कि वो माफ कर दे, वो सदका कर दें कि भाई नहीं हम कोई पैसे नहीं लेंगे, हमने तुम्हें माफ कर दिया। जैसे एक्सीडेंटों में आमतौर पे होता है, वो भी कत्ल खता ही होता है, होता तो वो भी बहुत तो वारद हो जाती है, एक किस्म का कत्ल ही है, लेकिन उसको खता में ताबीर करके उसकी दियत ही दी जाती है, उस पर किसास नहीं होता। फ़इन काना मिन कौमिन अदुव्विन लकुम, फिर अगर कोई ऐसी कौम है जो तुम्हारी दुश्मन है, वह मोमिन, और है वो मोमिन, फ़तहरीरु रक़बतिन मोमिना, तो फिर एक मोमिना की गर्दन की आज़ादी उसका फिदिया है। वह इन काना मिन कौमिन बैनकुम व बैनहुम मिसाक, अगर कोई ऐसी कौम है जिसके दरमियान और तुम्हारे दरमियान मुआहदा है, फदियत मुसल्लमतुन इला आली, तो उसका खून बहा देना है जो इसके आल के सुपुर्द किया जाएगा, गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं होगा बल्कि उसके वारसों को दिया जाएगा। वतारीरु रक़बतिन मोमिना, और एक मोमिना गर्दन को आज़ाद करवाना है। फमन लम यजिद, फिर अगर कोई इसकी ताकत नहीं रखता, ना पैसे दे सकता है, ना गुलाम खरीद के आज़ाद कर सकता है, फस्याम शहरैन मुतताबिइन, तो रोजे रखे 2 महीने लगातार, कोई वक्फा दरमियान में करने की इजाजत नहीं है। तौबतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की जानिब से तौबा है, यानी तौबा का इस्तेहकाक दिया जा रहा है। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह नियतों को भी जानता है, उसके फैसले हिकमत पर मबनी है। वमन यक्तुल मोमिनम मुतअम्मिदा, एक कत्ले खता था, अब कत्ले अमद की बात आ गई। जो कत्ले अमद में भी 2 सूरतें हैं, कत्ले अमद और शिबे अमद, यानी एक तो बिल्कुल वाज़े है कि जानबूझकर मारा गया, दुश्मनी में मारा, या किसी और मसलहत के लिए उसने उसको मार दिया, और एक ये है कि मारा तो उसने डंडे छोटे से, बंदा मर गया। अब ये देखना पड़ेगा कि वो किस नीयत के साथ ये सारा काम कर रहा था। अगर तो वो मारना ही चाहता था, पत्थर उठाकर मारा, तो अब पत्थर जो है वो बज़ाहिर तो मौत का आला नहीं है, लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह लग जाता है कि आदमी मार सकता है, या किसी ने किसी को पकड़कर इतने डंडे मारे कि वो मर गया, तो बाद में कहते हैं जी हम तो उसे मारना नहीं चाहते थे, शिबे अमद तो हो गया, यानी कत्ले अमद की तरह मुशाबे बिल अमद हो गया कि उसने तो फिर जब मारा ही इतना है तो फिर मारना ही चाहता था ना। लिहाजा अगरचे उस तरह वाजे अमद नहीं है, लेकिन मुशाबे अमद जरूर है। फरमाया फजजाउ जहन्नम, आखिरत की सजा पहले सुनाई है। ये तो पीछे दियत की बात तो खता में की है, इसमें किसास की बात सूरह बकरा में गुजर गई, यहाँ आखिरत की सजा की बात की है कि ये इतना बड़ा गुनाह है, किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करना, उसकी जजा जहन्नम है, हमेशा रहेगा उसमें, अल्लाह का उस पर गजब होगा, अल्लाह की उस पर लानत होगी, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा। बड़ा अजाब जसामत में, शदीद अजाब तकलीफ में, और महीन अजाब रसवाई में, 3 बातें होती। तो फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाह, जब तुम निकलो अल्लाह की राह में, ज़रबतुम बमाने साफर तुम के है कि जब तुम सफर करो, जब तुम चलो। फरमाया फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में, फतबय्यनू, बस तहकीक कर लिया करो, वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम, और मत कहो उसको जो डाले तुम्हारी तरफ सलाम को। वाकया ये हुआ कि सहाबा इकराम की एक जमात मुजाहिदीन की कहीं जा रही थी, जाहिर है कोई उनको हदफ दिया गया होगा, उस पर जा रहे थे। रास्ते में एक कबीला था, कबीले के बाकी लोग कहीं चले गए, उनको पता चला कि मुसलमानों की कोई फौज आ रही है, तो वो इधर उधर हो गए। एक आदमी उनमें ऐसा था जो अपने माल बकरियों को संभाल रहा था और वहीं पे मौजूद था। जब उसने देखा मुसलमानों को आते हुए, तो उसने कहा सबा तो मैं साबी हो गया, चूंकि उसे ये पता नहीं था
کہ मुसलमान कहते हैं इनको, क्योंकि मुसलमानों के बारे में मशहूर मुखालिफिन ने ये किया था कि साबी है, ये साबी यानी बाप दादा के दीन से फिर जाने वाले। तो आगे बढ़ के किसी साबी ने उसको कत्ल कर दिया। एक कौल, एक रिवायत ये भी है कि उसने बाकायदा इस्लाम का ऐलान किया। तो दूसरे ये जो सबातों के बारे में कहते हैं कि उसने इसके जरिए से ही इस्लाम का इजहार किया कि मैं मुसलमान हो गया हूं, लेकिन उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। तो ये वाकया जब हुआ तो बाद साहबा ने इस पर इख्तिलाफ किया, जो लश्कर में थे। उन्होंने कहा कि ये तो आदमी अपने इस्लाम का इजहार कर रहा था, इसको क्यों कत्ल किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हाजिरी हुई, बाद ने हजरत उसामा का नाम लिखा है कि हजरत उसामा ने उनको कत्ल कर दिया। एक और रिवायत में, एक और वाकया में किसी और साथ हजरत मिकदाद है, उनका नाम आता है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वाकया पेश हुआ तो आपने नाराजगी का इजहार किया, और उस साहबी ने, जिसका भी जिक्र है जिसने कत्ल किया था, उसने कहा या रसूलल्लाह, उसने डर कर इजहार इस्लाम किया था। तो आपने गुस्से में फरमाया अशक़क़त क़ल्बहु, क्या तूने उसका सीना फाड़ के देखा था कि उसने अंदर से इस्लाम कबूल किया या ऊपर से किया। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार ये अल्फाज कहे, अशक़क़त क़ल्बहु, अशक़क़त क़ल्बहु। और कहते हैं वो साहबी हजरत उसामा थे या जिनका भी जिक्र आता है, तो वो कहने लगे कि मेरा ख्याल आया, मुझे ये ज़हन में आया, काश कि मैं आज मुसलमान हुआ होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी के ये अल्फाज मुझे सुनना ना पड़ते। तो ये इस हद तक इस पर नबी अलैहिस्सलाम ने रद्द अमल दिया। मोमिन का कत्ल अल्लाह की निगाह में कितना ही बड़ा है कि उसकी सजा में अल्फाज कितने इस्तेमाल किए हैं, इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं। फरमाया कि तब्तगून अरज़ल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी का सामान चाहते हो, भाई इसको काफिर बना के मार लें, इसका सामान कब्जे में कर लें माल गनीमत में। फरमाया फ़इंदल्लाहि मग़ानिमु कसीरा, अल्लाह के पास गनीमतें हैं बहुत। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे। फ़मन्नल्लाहु अलैकुम, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, तुम्हें ईमान की दौलत बख्शी। फरमाया फतबय्यनु, आइंदा याद रखो कि कोई भी अगर इस तरह का मामला पेश आए तो तब फतबय्यनु, पूरी तरह उस मामले की छानबीन करो, तसल्ली कर लो। फरमाया इन्नल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, बेशक अल्लाह जो तुम अमाल करते हो आगाह है उससे। ला यस्तविल काइदून मिनल मोमिनीन, ईमान वालों में से जो बैठ रहने वाले हैं वो बराबर नहीं हो सकते गैर उलिल ज़रर, जिनका कोई उज़र नहीं है, कोई तकलीफ भी उनको नहीं है, ना बीमार हैं, ना कोई शदीद बुढ़ापा है, कोई उज़र नहीं है उनके पास, कोई ज़रर नहीं है उनको जिहाद में जाने से जो रोक सके। तो फरमाया वो वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, और जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं मालों से और जानों से, और ये बराबर नहीं हो सकते। जाहिर है बराबर तो नहीं होंगे। जो आदमी मैदान जिहाद में नहीं उतरा, और मैदान जिहाद से मुराद सिर्फ मैदान किताल तो नहीं है, अगरचे मौजू उसी का ही करीबन चल रहा है, लेकिन जिहाद का लफ्ज तो वसी है। जो लोग दीन के लिए जद्दोजहद करते हैं और एक आदमी के पास वसाइल भी हैं, सेहत भी है, सलाहियत भी है, वो उसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया के कामों में लगा रहा है, दीन के काम के लिए उसको पेश नहीं करता, तो ये भी उस जुमरे के अंदर ही आएगा ना। तो ये उसके बराबर तो नहीं हो सकता जो अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है, माल से, जान भी हाजिर है, माल भी हाजिर है। फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल काइदीन दरजा, अल्लाह ने फजीलत दी है मुजाहिदीन को उनके मालों और जानों की वजह से, अलल काइदीना, बैठ रहने वालों पर दरजा। व कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, और हर एक के साथ अल्लाह ने अच्छा वादा किया है। जो माजूर लोग जिहाद में नहीं जा सकते उनके लिए बड़ा अजर है, वो दुआ करें, और जो
غیر معذور ہیں وہ جہاد میں جائیں۔ اب البتہ یہ کہ جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور وہ جہاد میں نہیں جاتے تو ان کے لیے تو مواخذہ ہے، اجر نہیں ہے۔ فرمایا درجات من و مغفرت و رحمہ، درجات ہیں ان کی اس کی طرف سے۔ جی جی درجات منو یہ نہیں ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بڑے اجر کے ساتھ، یعنی جو جہاد کر رہے ہیں، جو اللہ کے دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں یا قتال کر رہے ہیں دشمنوں سے، ان کا مرتبہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، ان کے لیے اللہ نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ قائدین کے لیے کسی اجر کی بات نہیں فرمائی گئی۔ درجات من و مغفرہ، اس کی جانب سے درجے بھی ہوں گے اور بخشش بھی ہوگی اور رحمت بھی ہوگی۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہیں قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، ظلم ڈھانے والے اپنے آپ پر، یعنی گناہ کر کے اپنی زندگی کو ظلم کا نمونہ بنانے والے۔ قالوا فیما کنتم، تو وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور لوگ تھے، لہذا اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہمارے طاقت نہیں تھی۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو فرشتے ان کو کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ جب تمہارا ایمان خطرے میں تھا وہاں رہ کر، دار الکفر میں رہ کر، تو تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ دار الکفر میں رہ کر تمہارا ایمان ہر وقت خطرے میں تھا اور تم کفر کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور تھے، تو پھر تمہیں ہجرت کرنی چاہیے تھی، تم نے کیوں نہیں کی؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، پھر تم ہجرت کرتے ہو اس سے۔ فاولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کی۔ وساعت مصیرہ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین، مگر وہ کمزور لوگ، من الرجال والنساء والولدان، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلا، جو کوئی سبب کوئی ذریعہ نہیں پاتے وہاں سے نکلنے کا، ولا یہتدون سبیلا، اور انہیں کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا کہ وہ دار الکفر کو چھوڑ سکیں، وہ اتنے مجبور اور پابند ہیں کہ وہاں سے ان کو نکلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا، ان کی صحت، ان کی صلاحیت ان کو نکلنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ درگزر کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، تو پائے گا زمین میں بہت کشادگی اور وسعت۔ ثم يدركه ومن يخرج من بیتی مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اور جو کوئی نکلے گا اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کرنے کے لیے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو پالے گی موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اجر ہے اس کے لیے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہجرت عربی زبان میں حجر کا لفظ چھوڑنے کا ہے، وطن کو چھوڑ دینا اس کا نام ہجرت ہے۔ اور فی سبیل اللہ ہجرت یہ ہے کہ اپنا دین و ایمان محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے اپنے دیش کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر کو چھوڑ دینا، اس کا نام ہجرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا کہ ہجرت فی نفس سے ہی ممنوع ہو گئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک خاص تناظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی، اور وہ یہ تھا کہ اب
कोई आदमी मक्का से हिजरत करके मदीना जाने की जरूरत नहीं है। उस वक्त तक थी जब तक मक्का दारुल कुफर था और मदीना दारुल इस्लाम था। तो फिर दारुल कुफर से दारुल इस्लाम की तरफ जाने की अब चूंकि नौबत नहीं रही, मक्का भी दारुल इस्लाम में शामिल हो गया, लिहाजा हिजरत की जरूरत बाकी नहीं रही। हिजरत की ममानत का मतलब यह है कि अब हिजरत की जरूरत नहीं है। उन हालात के अंदर बात फरमाई जा रही उस तनासुर में, लेकिन फी नफ्से हिजरत जो है उसका तो अंदाजा इसे कर लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने भी हिजरत की, फमन कानत हिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही, जिसने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर वतन छोड़ा, घर छोड़ा, तो फहिजरतु इला मा फहिजरतु, उसकी हिजरत जो है इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल की खातिर शुमार होगी, उसको अजर मिलेगा। जिसने दुनिया की खातिर घर और वतन छोड़ा, फहिजरतु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत अल्लाह और रसूल के लिए नहीं है, अपनी गर्ज के लिए है, तो उसका अजर और सवाब उस पर के लिए नहीं होगा। तो हिजरत जो है ये एक ऐसा अमल है जो जारी है। जिस तरह जिहाद जारी है, इस तरह हिजरत का अमल भी जारी है। और आपके सामने है कि जब रूस ने सोवियत यूनियन के नाम पे कब्जा किया अफगानिस्तान पे, तो लोग हिजरत करके आए, इसलिए आए कि हम कुफ्र से बच जाएं, अपने ईमान को बचा लें। आगे तो खराबियां उनकी वजह से भी, कुछ हमारी पॉलिसियों की वजह से भी हुई, लेकिन उसको हम हिजरत कह सकते हैं। जो लोग अपना दीन बचाने के लिए घर बार छोड़ के निकल आए, वो मुहाजिर हैं। तो इसलिए आज भी अगर कहीं किसी का दीन व ईमान खतरे में हो, किसी मुल्क के अंदर, किसी इलाके के अंदर, उसको छोड़ देना हिजरत ही शुमार होगी। फरमाया कि वैज़ा ज़रबतुम फिल अर्द, जब तुम जमीन में चलो फिरो, फलैसा अलैकुम जुनाहुन, तो तुम पे कोई गुनाह नहीं, अन तक़सुरू मिनस्सलाह, कि नमाज को मुख्तसर कर लो। कसर ये सफर का बयान है। यहाँ ज़रबतुम बमाने साफर तुम के होगा कि जब तुम सफर में हो तो नमाज कसर कर लो। अब उसकी मुद्दत और मेयार और मिकदार क्या है, वो अहादीस से मुतय्यन होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हदीस की जरूरत नहीं है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कुरान ने तो सिर्फ कहा अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, ये नहीं बताया कि फजर की कितनी है, जोर की कितनी है, असर की कितनी है, मगरिब और इशा की कितनी है। कहीं है कुरान मजीद में कुछ बताएं रकतें कितनी है। औकात का तय्युन भी ताबीर के साथ किया गया है कि अकीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स इला गसकिल लैल व कुरान अल फज्र, उससे दलील पकड़ी गई है, ताबीर की गई है, लेकिन कोई औकात का तय्युन नहीं है इस माने में कि फलां वक्त से फलां वक्त नमाज का वक्त, फलां नमाज का वक्त है, फलां से फलां नमाज का वक्त है, फलां नमाज की इतनी रकतें हैं, फलां की इतनी है। कुरान मजीद में ऐसी कोई तफसील आपको नहीं मिलेगी। तो फिर हदीस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुरान का सबसे पहला और सबसे बड़ा और हकीकी शारे तो साहिब कुरान है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने जो कुछ उसके अमल को साबित किया वही हमारे लिए उस्वा है। तो फरमाया कि इन खिफ्तुम, अब यहाँ एक है मुतलक कसर, और उसके बारे में भी अहादीस में आता है कि जो मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर रिवायात मौजूद हैं, वो 3 फरसख का जिक्र करते हैं। गालिबन वो 48 मील बनते हैं, कुछ लोगों की राय मुख्तलिफ भी है। बहरहाल ये इतना सफ़र हो तो उसके अंदर कसर करना जायज़ है। और कसर क्या होगा, जो रकतें 4 रकत वाली नमाजें हैं उनकी 2 हो जाएंगी, लेकिन 3 और 2 वाली रकतों की कसर नहीं होगा, ये जेल में रहे। फिर जो सुन्नतें हैं उनका इख्तियार है, पढ़ लें सवाब है, ना पढ़ें तो कोई हर्ज नहीं है सफ़र के दौरान। यानी अगर आप ठहर गए हैं, कहीं क़याम हो गया है सफ़र में ही, तो वहाँ सुन्नतें पढ़ लें तो बेहतर है, ना पढ़ें तो मुआखज़ा नहीं है, और नफल तो फिर नफल है। फरमाया अगर नमाज खौफ की हालत हो, इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू, कि तुम्हें काफिर नमाज की हालत में पाके आ दबोचेंगे, इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। तो फरमाया वैज़ा कुन्त फ़ीहिम, जब आप इनके अंदर मौजूद हों, फ़अक़म्त लहुमुस्सलात,
तो हालत जंग में भी नमाज को कायम कीजिए। और कैसे कीजिए? फलतकुम ताइफतुम मिनहुम, एक गिरोह उनमें से तेरे साथ आके नमाज पढ़े। यानी लश्कर है ना, एक ग्रुप जो है वो दिफा पर खड़ा रहेगा पैरे पर, एक आकर इमाम की इक्तदा में क्या करेगा? नमाज पढ़ेगा। फिर ये एक रकत पढ़ के चला जाएगा, सलाम नहीं फेरेगा, उसी हाल में वापस चला जाएगा और दूसरा आ जाएगा, वो भी अपनी एक रकत पढ़कर वापस चला जाएगा और फिर बाद में हर एक अपनी एक एक रकत को पूरा कर लेंगे और सलाम फेर देंगे। ये तरीका नमाज का इसमें बयान किया। और अब चूंकि हालत ये होती है कि दौर तीरों तलवार का तो है नहीं और मैदान जंग भी कोई एक जगह नहीं होती कि फलां जगह जंग हो रही है बाकी जगह महफूज है। अब तो जंग का दायरा पूरे एरिए पर हो जाता है, हर जगह उस जंग की हालत से दो चार होती है। लेकिन नमाज खौफ की अदायगी का एहतमाम, यानी नमाज का एहतमाम तो फिर भी ज़रूरी है। उसके लिए जो भी ahsan और महफूज सूरत हो वो इख्तियार की जा सकती है। मसलन आज मोर्चों का दौर है, बैंकर बने होते हैं, वहाँ अगर दो चार लोग जमा हो, वहीं वो जमात के साथ नमाज पढ़ ले और कुछ लोगों की ड्यूटी लगा दें कि वो दुश्मन की तरफ निगाह रखें या अपने अपने बैंकरों में नमाज अदा कर लें, कोई इक्तदा इमामत करा ले। इसी तरीके से जब ये फारिग हो जाए तो ये उधर निगाह रखें और वो अदा कर लें, तो ये एक सूरत हो सकती है। किसी एक जगह पे जमा हो के सबका एक इमाम की इक्तदा में एक एक रकत पढ़ना अब मुश्किल हो गया है, इसलिए कि अब जदीद दौर के जदीद जो तकाजे हैं उनके मुताबिक ये मुमकिन नहीं है। लेकिन सूरत फिर बैंकरों में इसी नौइयत की होगी। ये फिर आगे क्या इज्तिहाद की सूरत है, इज्तिहादी शक्ल होगी कि अब उसको किस शक्ल में अदा किया जाएगा। फरमाया फैजा सजद फल यकून में वराइकुम वरतात ताइफतुन उखरा, जब हो जाए, जब वो सजदा कर चुके हैं तो वापस चले जाएं और आ जाए दूसरा गिरोह लम युसल्लू, जिन्होंने पहले नमाज नहीं पढ़ी, फल युसल्लू माक, वो तेरे साथ आके नमाज पढ़ लें। वल याखुदू हिजरहुम व अस्लहतहुम, चाहिए कि वो अपना असला लगा के रखें, उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हालत जंग में है। वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलून, काफिर चाहते हैं कि तुम गाफिल हो जाओ अन अस्लहतिकुम, अपने असलिया से, व अम्तियातिकुम, और अपने सामान से। इससे मालूम हुआ कि सामान की भी बड़ी अहमियत है, यानी जो सिर्फ असला ही जरूरी नहीं है, दूसरी चीजें जो हैं मसलन खाने पीने की चीजें या इस तरह के जो लवाजिमात हैं उनको भी, यानी दुश्मन जब किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उनकी खेतों को भी खराब करता है, उनकी फसलों को भी तबाह करता है और जाहिर है उससे उनके पीछे जो सिस्टम है वो मुतासर हो जाता है। तो फरमाया वह आमतियातिकुम फयमीलूना अलैकुम मैलतम वाहिदा, और तुम गाफिल हो जाओगे तो वो तुम पर यक बारगी टूट पड़ेंगे। मैलतम वाहिदा, यक बारगी टूट पड़ना। वला जुनाह अलैकुम, तुम पे कोई गुनाह नहीं, इन कान बिकुम अज़म मिन मतर, अगर तुमको तकलीफ पहुंच रही हो बारिश की वजह से, और कुन तुम मर्जा या बीमार हो, अन तज़ऊ अस्लहतकुम, के अपने हथियार उतार कर रख दो। अगर कीचड़ है और तकलीफ का बायस बन रहा है असला उठा के रखना, तो फिर असला उतार भी सकते हो। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम तो करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उतारने के नतीजे में कोई अमन को, उनके मकाम को नुकसान पहुंचने का कोई अंदेशा हो। तो फरमाया उससे एहतियात बरतते हुए वखुज़ू हिज़्रकुम, और अपना सामान दिफा दे दिया करो। इन्नल्लाह अद्दलिल काफिरीन अज़ाब मुहीना, बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए रुस्वाकुन अजाब तैयार कर रखा है। फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलाह, जब तुम नमाज पूरी कर चुको, फ़ज़्कुरुल्लाह, बस अल्लाह को याद करो, क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, खड़े बैठे और लेटे। इसका मतलब ये हुआ कि नमाज भी जिक्र है और नमाज के बाद भी कोई जिक्र है, नमाज भी जिक्र है और नमाज के बाद भी कोई जिक्र है। हमने देखा फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलाता, जब तुम नमाज पूरी कर चुको तो फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम। फ़इज़ा तुम, फिर जब तुम हालत अमन में आ जाओ, मुतमईन हो जाओ, फ़ाक़ीमुस्सलात,
कर देते हैं जी, बैठने की और नमाज के बाद, यानी वो बिल्कुल वाज़ेह है बात कि नमाज के बाद सिर्फ नमाज ही जिक्र नहीं है, नमाज के बाद भी जो आप अल्लाह का नाम लेते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, कलमे का विर्द करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब ये भी मतलूब हैं, ये भी होने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताए थे कि 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। तो ये अज़कार बिल्कुल दुरुस्त हैं, बल्कि ये इन्हें होना चाहिए, इसलिए कि यहाँ उनके जिक्र करने का मकसद भी यही नजर आता है कि फिर बस नमाज से सलाम फेरी और गए, बस कार्य दुनिया में गर्क हो गए, ऐसा नहीं है। अल्लाह की याद का एक तसलसल जो है वो कायम रहना चाहिए। नमाज खास हैयत का नाम है, जब हैयत टूट गई तो फिर क्या आप जिक्र से फारिग हो गए? नहीं, फिर भी जिक्र करना चाहिए। इसीलिए अहादीस की रोशनी में लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर बनवा के लगाए हुए हैं ना मसाजिद में कि नमाज के बाद ये जिक्र है, ये जिक्र है, ये जिक्र है। तो जिक्र तो है। फरमाया कि फ़ाक़ीमुस्सलाह इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, जब तुम हालत अमन में आ जाओ, सुकून इत्मीनान हो जाए, तो फिर अपनी तरीक़ेकार के मुताबिक नमाज को कायम रखो जिस तरह आम हालात में चलती है। और इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, जंग की हालत में तो औकात में भी कोई रद्द बदल हो जाता है, यानी कभी ऐसा होता है कि ताख़ीर हो सकती है, जंग शुरू है, अब नमाज पढ़ने की मोहलत ही नहीं मिल रही। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा आज़ाब के मौका पे तो नमाज लेट पड़ी, जोर की नमाज असर के वक्त जाके पड़ी, और आपने दुश्मनों के लिए, मुखालिफिन के लिए बददुआ भी फरमाई। तो इसलिए ऐसा हो सकता है, लेकिन आम हालात में, नॉर्मल हालात में नमाज को कब पढ़ना चाहिए? अपने वक़्त पर पढ़ना चाहिए। इन तकूनु तालमूना फ़इन्नहुम यालमूना कमा तालमून, अगर तुमको दर्द पहुंचा है, दुख पहुंचा है, तकलीफ पहुंची है, तो फ़इन्नहुम यालमून, उनको भी तो तकलीफ शिकस्त की पहुंची है, कमा तालमून, जैसे तुम्हें पहुंची है। वतरजून मिनल्लाहि मा ला यरजून, फर्क सिर्फ ये है, मैंने फतह तुम्हें भी मिली एक मौके पे, ओहद में उनको भी मिल गई, शिकस्त तुम्हें भी हुई और बाकी फतूहात भी मिल गई। तो ये तो सिलसिला जंग में तो कभी फतह कभी शिकस्त भी होता रहता है, लेकिन फर्क, जो असल फर्क है वो क्या है कि तुम अल्लाह से जिस चीज को उम्मीद रखते हो, उनको अल्लाह से उस चीज की उम्मीद नहीं है। अल्लाह से तुम किस चीज की उम्मीद रखते हो? अजर की, शहादत मिले या गाजी बने, दोनों सूरतों में अजर है। उनको अल्लाह से किस चीज की उम्मीद है? माला यरजू, वो उम्मीद नहीं रखते। वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, और अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब, बेशक हमने तेरी तरफ नाज़िल की किताब, बिलहक, हक के साथ, लितहकुम बैनन्नास, ताकि तू लोगों के दरमियान फैसले करे। लितहकुम बैनन्नास, किताब कौन सी किताब? कुरान मजीद। आप पर कौन सी किताब नाजिल हुई? कुरान मजीद ही नाजिल हुआ। तो कुरान मजीद इसलिए उतारा गया लितहकुम बैनन्नास, ये नहीं कहा कि लितक़रा बैनन्नास, ताकि तुम इसकी तिलावत ही पढ़ पढ़ के सुनाते ही रहो सिर्फ, बल्कि इसके जरिए लोगों के झगड़ों के फैसले भी करने हैं। लितहकुम बैनन्नास बिमा अराकल्लाह, उसके मुताबिक जो अल्लाह ने तुझे दिखाया। वला तकुल लिल खाइनीना खसीमा, और खयानतकारों के लिए झगड़ने वाला न बनना। अच्छा, वाकया है इसके पीछे। बनु बैरक का एक आदमी था, तो मैं उसका नाम जिक्र करते हैं, बाद में बशर नाम जिक्र किया है, कि बशीर नाम जिक्र किया है। उसने की चोरी, और चोरी हुई यहूदी की, चोरी करके ना सहाबी की चोरी की उसने, हजरत कतादा थे गलबन, उनके घर से चोरी की। चोरी करके वो ले गया, उसको सामान को ले जाके शोर मच गया। सुबह उठे तो चोरी का रौला पड़ गया, उसको डर लगा कि कहीं तलाश करते मुझ तक ना आ जाए। उसने वो सामान यहूदी के घर में जाके रख दिया, अमानत था। अब इत्तेफाक ये था कि वो उसमें एक छेद भी था या डाल दिया,
आटा भी था और ज़रा भी थी, कुछ और चीजें भी होंगी। तो वो आटा जो था ना, वो लाइन बनाता चला गया, जहां सामान गया तो सामान तो बरामद हो गया। थोड़ा मान जी हाँ, सामान हो गया बरामद, तो यहूदी को पकड़ लिया गया। हाँ भाई, तुम्हारे पास से माल बरामद हुआ है, सुनाओ। उसने कहा जी मेरे पास तो अमानतन रखा है, फलां आदमी ने रखा है। उसको पकड़ा गया। उसने कहा जनाब ये तो फलां आदमी ने किया है, मैंने नहीं किया। वो तलवार लेके आगे कहने लगे मैं तो जाऊंगा नहीं जब तक ये फैसला ना हो कि किसने चोरी की। अब वो चूंकि कबीला दर जोरावर था जिसका उन्होंने नाम लिया था, वो भी मुसलमान था, तो उसको उन्होंने बनु बैरक ने ना खामोशी से समझा बुझा के कि माफी दे दे, गलती से तुम्हारा नाम आ गया, कोई ऐसा मसला नहीं। आप उनसे तो जान छूटी। अब ये आ गया तोमा, तो ये इसकी चोरी तो होगी साबित। यहूदी ने कहा जनाब ये तो अमानत के तौर पे रख के गया है, मैंने तो ये तो मैंने की ही नहीं है। अब उसने तस्लीम तो करना पड़ा, लेकिन किया उसने ये कि वो भाग गया मक्का और मुर्तद हो गया। यानी उसने बजाय इसके कि अपनी गलती तस्लीम करता, सजा भुगतता, वो भाग गया और मुर्तद हो गया। फरमाया कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया कि आप वाल्लमा का मालम तकुन तालम, मेरे पैगंबर तुम तो यहूदी को पकड़ बैठे थे, क्योंकि सामान जिसके यहाँ से बरामद हो बजाय तो चोर वही समझा जा सकता है ना। अब अंदर का हाल तो अल्लाह ही जानता होता है। तो हमने आपको आगाह कर दिया कि यहूदी ठीक कह रहा है, यहूदी चोर नहीं है, चोर दूसरा है, ये हमने बताया। फरमाया वस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश मांगते रहिए, इन्नल्लाह कान गफूर रहीमा, वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, उनके बारे में झगड़ा मत कीजिए जो अपने नफ्सों से खयानत करते हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वाना नसीमा, अल्लाह उनको दोस्त नहीं रखता जो खयानतकार हो, गुनाहगार हो। यस्तखफून मिनन्नास, लोगों से छुप सकते हैं, वो लोगों से छुपना चाहते हैं, उनसे छुप भी जाते हैं। वला यस्तखफून मिनल्लाह, लेकिन अल्लाह से नहीं छुप सकते। लोगों से छुप सकते हैं, अल्लाह से नहीं छुप सकते। वमाहुम, और वो उनके साथ होता है, इज़ युबय्यितून, जब वो रातों को अपनी कार्रवाइयां करते हैं, माला यर्दा मिनल कौल, रातों को मशवरे होते हैं, मीटिंगें होती हैं, मंसूबे बनते हैं जो पसंदीदा बातें नहीं हैं। अल्लाह उस वक्त भी उनको देख रहा होता है, सुन रहा होता है, अल्लाह बेखबर नहीं होता। फरमा वकान अल्लाह बिमा यामलून मुहीता, और अल्लाह जो कुछ वो कर रहे हो उसको इहाता की हुई है, वो उसके इहाता कुदरत से बाहर नहीं है। हाँ अन तुम हाउला जादल तुम अन फिल हयात दुनिया, हाँ तुम वही तो हो, जादल तुम, कि तुमने झगड़ा किया उनके बारे में, दुनिया की जिंदगी के बारे में उनसे झगड़ा किया। फमन युजादिलुल्लाह अनहुम यौमल क़ियामा, फिर अल्लाह के साथ कौन झगड़ा करेगा क़यामत के दिन। अम मन यकूनु अलैहिम वकीला, या किसका कोई होगा वकील जो उसकी वकालत करेगा। दुनिया में तो तुमने झगड़ा कर लिया अपनी जिंदगी के बारे में उनसे, यानी अहले हक से कह लीजिए, या जिनके साथ तनाजा हो गया, तो उस दुनिया के मामले में उनसे तुमने झगड़ लिया, अपना हक जताना चाहा, उन्होंने तुम्हारे हक का इनकार किया जबकि वो नहीं था। तो इस एतबार से अब जाहिर है कि बिशर ने बोहतान बांधा एक सहाबी के ऊपर कि चोरी इन्होंने की, और झगड़ा बन गया। तो ये झगड़ा तो हो गया, लेकिन अल्लाह के यहाँ तो कोई चीज मख्फी नहीं होगी। फरमाया वमन यामल सू, और जो कोई बुरा अमल करेगा, और यज़लिम नफ्सहू, या अपने आप पर जुल्म करेगा। बार बार जिक्र किया है कि जो आदमी गुनाह करता है वो अपने आप पर क्या करता है, जुल्म करता है। फरमाया सुम्मा यस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से माफी मांग ले, यजिदिल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। वमन यकसिब इस्मा, और जो कोई कमाएगा गुनाह, कसब कहते हैं कमाने को, तो जो कोई गुनाह कमाएगा, गोया आदमी के जो आमाल है उसकी कमाई है, आमाल उसकी कमाई है, सिर्फ माल नहीं, आमाल, आमाल भी उसके क्या है, कमाई है। फरमाया फइन्नमा यकसिबु अला नफ्सिही, तो उसकी कमाई का वबाल उसी पर होगा। अगर वबाल है या
उसके लिए माल है, नेमत है, दोनों सूरतों में। फरमाया वकान अल्लाह अलीमन हकीमा, अल्लाह इल्म और हिकमत वाला है। वमन यक्सिब खतिया, और जो कोई कमाएगा गुनाह, ऊपर जिक्र हुआ जिसने नेकी कमाई, अब जिसने गुनाह कमाया फरमाया औ इस्मन, या गुनाह। अच्छा, खता और गुनाह में क्या फर्क है? कहते हैं खता लफ्ज़ के हम मानी समझ लीजिए, और गुनाह जो खुला वाज़े तौर पे गुनाह होता है। फिर इस्म के बाद क्या है? इस्यान है, इस्यान के बाद क्या है? फिस्क है, फिस्क के बाद क्या है? कुफ्र है। ये दर्जाबंदी बाज लोग करते हैं। इस्म महा का फी सदरिक, जिस चीज पर तेरा दिल मुतमैन हो वो समझ इस्म है। महा का फी सदरिक, जिस पर तेरे दिल में इत्मीनान ना हो समझ ले वो क्या है? इस्म है। मसलन आप कोई चीज ले रहे हैं, आपका दिल मुतमैन नहीं है कि पता नहीं ये ठीक है कि नहीं, तो ये समझ लीजिए कि ये इस्म है। और जो पता हो कि ये गलत है और आप कर जाएं, ये है इस्यान। और इस्यान के बाद अगर आप उस गुनाह को छोड़ देते हैं तो माज आसी है, अगर उस पे अड़ जाते हैं तो फिर फिस्क है। फिस्क कहते हैं गुठली से जो खजूर के अंदर से जो गुठली होती है उसको निकालने का नाम क्या है? फसुकतिर रतुबा, कि गुठली खजूर से बाहर निकल गई। तो वो आदमी जो अल्लाह की फर्मा बरदारी से बाहर निकल गया उसको कहते हैं फासिक, यानी मुसिर अलल मासिया, गुनाह के ऊपर डटा रहने वाला फासिक होता है। सिर्फ गुनाह कर लेने वाला आसी होता है। और जो चीजें मशकूक हों उनका इस्तेमाल करने वाला आसिम हो सकता है। फरमाया और उससे ऊपर फिर कुफर है, निफाक और कुफर। वकान अल्लाह वमन यक्सिब खतियतन व इस्मन सुम्मा यरमे बिही बरिया, फिर यरमे, रमा यरमे की मैंने फेंकने के होते हैं, फिर फेंका उसने उसके साथ बरी को, जिसने गलती नहीं की इल्जाम उस पर लगा दिया। चोरी जिसने नहीं की थी उसके खाते में डाल दी कि इसने की है, बोतान बांध दिया। दो चीजें हैं, एक गीबत है, एक बोतान है। गीबत यह है कि जो कसूर उसमें मौजूद हो उसको उसकी पीठ के पीछे बयान किया जाए, ये गीबत है और ये भी गुनाह है। और बोतान ये है कि उसमें वो गलती है ही नहीं और आप उसके जिम्मे लगा रहे हैं। फरमाया फकद इहतमला बोतान व इस्म मुबीना, फिर उठाया उसने बोतान और खुला गुनाह। वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु, और अगर अल्लाह का फजल ना होता तेरे ऊपर उसकी रहमत, लहम्मत ताइफतुम मिनहुम, अलबत्ता इरादा किया था एक गिरोह ने उनमें से, अन युज़िल्लुहु, कि आपको भटका दे। क्या मतलब? यानी एक गिरोह कबीला आ गया ना, बनु बैरक, मुसलमान थे वो भी, तो उन्होंने कहा जी हमारे कबीले को बदनाम करने की साजिश है, ये है वो है, तावीलें शुरू हो गई कि किसी तरह बशर की या तोमा की जान छूट जाए, तो सफाइयां देने लग गए। तो ये इसके बारे में फरमाया कि अगर अल्लाह का फजल और रहमत न होती तो वो तो आपको फिसला रहे थे। वमा युदिल्लूना इल्ला अनफुसहुम, और वो नहीं कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे मगर अपने आप के साथ कर रहे थे। वमा यज़ुर्रुनका मिन शै, तेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे थे, अपना बहुत कुछ बिगाड़ रहे थे। वह अनज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमा, और अल्लाह ने तुझ पर किताब नाजिल की और दानाई भी अता की। वह अल्लमका मा लम तकुन तालम, और तुझे वो कुछ बता दिया, सिखा दिया जो तू नहीं जानता था। वकान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह का फजल तुझ पर बड़ा है। ला खैर फी कसीर मिन नजवाहुम, ये बात हो गई। तो चूंकि एक मामला गुजर चुका था, अब इन चीजों ऐसे मौके पे लोग काना फूसी करते हैं। वैसे भी कई लोगों का मिजाज होता है कि वो साजिशी ज़हन के होते हैं, तो फिर वो कोई आदमी ढूंढ लेते हैं जिससे अलग बैठ के मनसूबा साजी करते हैं। इसको कहते हैं नजवा। और नजवा अलहदगी में किसी से सरगोशी करना, फी नफ्सी, अगर खैर के लिए हो तो मना नहीं है, लेकिन अगर शर के लिए हो तो सख्त तरीन गुनाह है। तीन आदमी हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, दो आदमी अलग होके काना फूसी शुरू कर देते हैं, तीसरे के दिमाग में, दिल में यह ख्याल आएगा
کہ کوئی بات میرے بارے ہے میرے سامنے نہیں کی الگ ہو کے کر رہے ہیں یہ میرے بارے ہی میں کر رہے ہیں ہو گئی نا بدگمانی پیدا تو نجوہ بدگمانی کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے نجوہ سے منع کر دیا ہاں ایک صورت جس کا استثناء دیا مثلا آپ نے مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے دو آدمی آپس میں دوست ہیں اور لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی پیسے چاہیے اور وہ الگ ہو کے آپس میں مشورہ کرتے ہیں بھائی تم کتنا دو گے اور میں کتنا دوں یا مشترکہ کھاتے میں سے ہم کتنا دے دیں اور الگ جا کے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں بھائی دینا چاہیے کتنا دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے جو بھی تو اس کی ممانعت نہیں ہے اس کی ممانعت خیر کے معاملے میں اگر مشورہ کرنا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے لیکن شر کے معاملے میں قطعی طور پہ منع ہے نجوہ سے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس لوگ لڑ کے آپس میں بھیڑ پڑے اب جھگڑا بڑا ہوا ہے دو آدمی الگ ہو کر مشورہ کرتے ہیں بھئی اس کو کیسے ختم کیا جائے کیونکہ وہ اپنے اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں اور ایک غلط ہے دوسرا صحیح ہے کیسے اس کو نبھایا جائے تو وہ علیحدہ جا کے اپنی میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے لیکن خیر کے لیے ہو اصلاح کے لیے ہو شر کے لیے نہ ہو ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ اور جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کی رضا کی خاطر فسوف نؤتی اجرا عظیما تو اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا اس لیے کہ اصلاح بین الناس بہت بڑا نیکی کا عمل ہے فرمایا ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی جو کوئی مخالفت کرے گا رسول کی من بعد ما تبین اس کے بعد کہ واضح ہو چکا لہو اس کے لیے الہدا ہدایت ویتبع غیر سبیل المؤمنین اور وہ چلا غیر سبیل المؤمنین اہل ایمان کے راستے سے ہٹ کر نولہ ما تولا ہم اس کو پھیریں گے اس طرف جدھر وہ پھرنا چاہتا تھا ونصلہ جہنم اور پھرتے پھرتے جا گرے گا جہنم میں وسعت مسیرہ اور وہ برا ٹھکانہ ہے اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھا جائے کہ اسی سے یہ اخذ کیا گیا کہ اجماع امت جو ہے وہ حجت ہے اجماع امت حضور علیہ السلام کا ارشاد بھی ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اجماع امت سے کیا مراد ہے عام لوگوں کا اجماع تو کوئی معنی نہیں رکھتا ایک آدمی عالم ہے ہی نہیں علم ہی نہیں ہے اس کے پاس اس کو قاعدہ بھی نہیں آتا وہ بھی اجماع میں شامل ہو جائے گا اچھائی برائی کا اس کو کیا پتہ ہے وہ تو خود سیکھنے کے عمل میں ہے لیکن اس اجماع سے مراد اہل علم کا اجماع ہے وہ جب اجماع ہو جائے تو وہ حجت ہے وہ دلیل ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی ان اللہ لا یغفر بس چلے میں کل تو جمعہ ہے پرسوں